Hello students, it's the ninth video of this chapter, integrals. Today we will discuss about definite integrals. Okay. We have already studied about the indefinite integrals. The question is why they were called indefinite integrals. Integration of fx dx, suppose it's fx plus c, constant of integration. Okay, it depends on the value of c. A value of c is not known to us. Okay, see the example. Suppose sine inverse 2x upon 1 plus x square dx integration. If we directly integrate this function, we get the answer, and if we reduce this function by putting x equal to tan theta, then we find 2 tan inverse x. Okay, then we will solve this question by integration by parts and we will get the answer. In both the cases we find the different answers. Question is same but answers are different. That's why we say it's indefinite integral. Okay, integration means to sum up. Now today we are going to discuss about the definite integral. Actually the definite integral has a unique value. Okay, it's different from indefinite. Definite integral has a unique value. A definite integral is denoted by a by b fx dx, where a is called lower limit and b is called upper limit. Okay, we are going to start definite integral as the limit of a sum. Limit of a sum. It's a very important concept for examination point of view, or we say ab initio method. Okay, limit of a sum or ab initio method. Now see what is the concept. Suppose we have a function y is equal to fx and we are going to integrate this function a to b fx dx. We draw the curve here. This is the curve y equal to fx and these are the points a to b. Okay, break the entire curve into n numbers of rectangles. Okay, suppose we are dividing this curve into n rectangles, okay, of equal breadth. This is the very important part. Equal breadth of these rectangles should be equal. Now suppose the breadth is h. If we divide this breadth is b minus a, and we divide this in n equal parts, then it will be b minus a upon n. Here the question is, we are dividing this curve into rectangles. Rectangles के केस में अगर मैं इस पार्ट को जूम करके आपको दिखा दूं इधर, तो आप ये देखेंगे कि लाइक दिस,
तो आप ये देखेंगे ये रेक्टेंगल ना तो ऐसे बन रहा है ना इधर से बन रहा है, ये इस तरीके का कर्व आ रहा है। तो देखिए जो कंसेप्ट है इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देन इट्स ऑब्वियस विड्थ विल बी डिक्रीज। अभी ये इतना दिख रहा है, फिर ये इतना दिखेगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा। तो क्या होगा कि ये जो एरिया है इसको इंक्लूड करके ये एरिया अगर हम ले रहे हैं या फिर इसको ले रहे हैं तो क्या होगा, ये एरिया लगभग इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसकी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स बहुत छोटे छोटे बन जाएंगे, तो ये एरिया जो आप इसको कंसिडर कर रहे हो, इसको और इसको, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें h क्या है, h आपको समझ में आ गया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स है। ये जो विड्थ आप ले रहे हो विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स। और ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना रहे हो वो है, ठीक है। तो क्लियर। अब देखिए इस पूरे का एरिया आपको निकालना है इस कर्व का a टू b, a से b तक। तो हमने क्या किया, इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। और इंटीग्रेशन का मतलब अभी अभी हमने सीखा था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। अगर हम ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इन सारे रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ से a टू b, सारे रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ, कैसे लिखेंगे, a टू b fx dx। तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कैसे है, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो विड्थ है, इधर विड्थ h है, तो इसका विड्थ क्या हो गया, h हो गया। ये विड्थ सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ इधर, ठीक है, इसका विड्थ क्या हो गया, h हो गया, क्योंकि इक्वल विड्थ है ना सभी का, तो ये विड्थ h। अब बात आती है कि ये विड्थ है, ये है, इसके बाद ये जो लाइन है, ये देखिए, ये जो लेंथ है, इस लेंथ की जब बात हो रही है तो आप ये देखिए कि ये जो लाइन है ये किसका कंपोनेंट है, इट्स ए कंपोनेंट ऑफ y, y का कंपोनेंट है। तो अगर x a है तो y इक्वल टू क्या है, fx। तो अगर आप a पे बात करें तो ये कितना आ जाएगा, fa। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये y का कंपोनेंट है, ये fa आ गया। तो h इंटू fa मतलब लेंथ दिस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये कैसे क्या हो रहा है, आगे जा रहा है तो क्या होगा, फिर इनका जो ब्रेथ है h है, तो अब आप जब अगले उस पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस एच। तो जब आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, एफ ए प्लस एच। तो ये हाइट इसकी कितनी आ गई, एफ ए प्लस एच, और इसकी ब्रेथ तो फिक्स है h। तो h इंटू एफ ए प्लस एच, ये सेकेंड जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ गया। सिमिलरली a प्लस 2h ये आ गया, और जो nth आपका रेक्टेंगल बनेगा वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इस तरीके से आपने इसको लिखा, ठीक है। आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए h, इसको आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं n में, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको चेंज किया, लिमिट ऐसे लिखा b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n f a plus h, f a plus 2h and f a plus n minus 1 into h, okay, where h is equal to b minus a upon n. h tends to 0 as n tends to infinity. Simple. भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी ब्रेथ कम होती जाएगी। अगर रेक्टेंगल्स
इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये इनकी ब्रेथ जो है 0 की तरफ जाती जाएगी। पहले सपोज अगर इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर थी, तो और रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगी, फिर 0.01 हो जाएगी, इस तरीके से और कम 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 होती जाएगी, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 2 to 3 x square dx. Find the value of this function from 2 to 3 x square dx by using limit of a sum. Okay, a to b fx dx is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 by n fa function fa plus h and so on fa plus n minus 1 into h. ओके, आपको समझ में आ रहा है a plus n minus 1 into h क्यों आया, nh क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देखिए यहाँ हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, fa plus 0h से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो एक नंबर इधर कम हो गया, इसलिए n माइनस 1 है। क्लियर? वेयर h is equal to b minus a by n. Okay, here a is equal to 2 and b is equal to 3. a is lower limit and b is the upper limit. Okay, and function is fx is equal to given x square, then h is equal to b minus a, मतलब 3 minus 2 upon n means 1 by n. Okay, put these values here. b minus a means 1, limit n tends to infinity 1 by n, 1 by n है ना, 3 minus 2, f2 fa, a means 2 है ना, देखिए f2 plus h and f2 plus n minus 1 h, इस तरीके से किया। नाउ लिमिट n tends to infinity 1 by n, fx equal to x square, then f2 is equal to 2 square plus 2 plus h square and so on, 2 plus n minus 1 h square. Okay, now limit n tends to infinity 1 by n. Now see, 2 square here, 2 square plus 4h plus h square, a square plus 2ab plus b square, a plus b whole square. Okay, here 2 square plus 2ab मतलब 2 into 2 4 n minus 1 into h plus square n minus 1 to h square. Okay, like this, a square plus 2ab plus b square here, ये देखिए इधर, ठीक है। Now limit n tends to infinity 1 by n. सी इधर देखिए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये nth टर्म में 2 स्क्वायर, यानी कि ये 1 से लेके स्टार्ट हुआ n तक, यानी कि n टाइम्स 2 स्क्वायर जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है ना। 1 1 1 अगर आप n टाइम्स ऐड करेंगे क्या आएगा, n आएगा ना। वैसे ही 2 स्क्वायर ऐड करेंगे तो n इंटू 2 स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड टर्म 4h, इधर भी 4h, सब में 4h आ रहा है, तो अगर मैं 4h कॉमन ले लेता हूँ तो क्या यहाँ बचेगा 1, इस वाले टर्म में यहाँ क्या बचेगा 2, और ऐसे चलता जाएगा तो nth टर्म क्या बचेगा, इधर देखिए 4h चला गया तो यहाँ n-1 बचा ना, तो ये देखिए n-1 बचेगा। क्लियर, ये देखिए, फिर प्लस इधर देखिए h स्क्वायर है इधर,
अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 का स्क्वायर। इधर आएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, मैं एक नेक्स्ट टर्म इसका लिख के दिखा दूं। देखिए 2 + 2h का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 2 + h, इस पर 2 + 2h का होल स्क्वायर आएगा आगे ना। तो ये कैसे आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म जब मैंने लिखा 4h कॉमन लिया, यहाँ से 4h कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ये देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 2 स्क्वायर h स्क्वायर जब मैंने यहाँ कॉमन लिया, देखिए इसमें देखिए h स्क्वायर जब यहाँ कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर, ये देखिए बचा है। ऐसे ही जब हम लिखेंगे 2 + 3h का होल स्क्वायर तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 1/n इंटू n इंटू 2⁻², ऐसे 4h की वैल्यू क्या थी, 1/n, ठीक है। और ये देखिए क्या है, 1 + 2 + n-1, तो ये क्या होता है, सिग्मा n। सिग्मा n क्या होता है, n + 1/2। अब देखिए यहाँ क्या है, n की जगह n ना होकर क्या है, n-1, तो रिप्लेस n/n-1, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको आप रिप्लेस करेंगे यहाँ n की जगह n-1, यहाँ आएगा n-1 + 1 मतलब n, तो ये हो जाएगा n-1 n/2, ये आ गया। और फिर क्या, h स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, 1/n²। और ये मैं आपको बताऊँ 1/n का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक n इधर आ गया और इधर भी एक n आ गया। अब ये क्या है, ये जो बन रहा है सिग्मा n² बन रहा है, कहाँ, इधर देखिए, इधर ये सिग्मा n² है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का मतलब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, 1² 2 का सिग्मा n² है ये। तो सिग्मा n² क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 ऐसे। लेकिन n के प्लेस पे क्या है, n-1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, n-1, तो हमने यहाँ रख दिया n-1, इसकी जगह n आ गया क्योंकि n-1 + 1 + 1 -1 कैंसिल होगा, और इधर आ जाएगा 2n-1/6। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब आप n की जगह n-1 रखेंगे तो आएगा 2n-2 और +1 तो -1 आएगा, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल, 2 स्क्वायर आ गया। इधर देखिए n से n कैंसिल हो गया, इधर 2 से ये कैंसिल हो गया तो हो गया 2 इंटू, इसमें से आपने n कॉमन लिया ना तो ये बचेगा 1 - 1/n, ठीक है ना। और नीचे n था, इससे से कैंसिल कर दीजिए। फिर अब आप देखिए ये इसमें कितना आ रहा है, ये इस तरीके से हमने लिख लिया ना, तो ये क्या बचा, 2 बच रहा है, इससे कट गया। और इसको और देख लीजिए एक बार, अब आपने क्या किया, ये कितना था, 1/n³ था, और इधर कितना था, n आपने कॉमन लिया तो कितना बचा, 1 - 1/n। ये n है पहले से ही, एक n आपने यहाँ से बाहर निकाला तो क्या है, 2 - 1/n/6। तो देखिए 1 2 3, तो n³ से कैंसिल हो गया। तो देखिए लिमिट जब आप लगाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसमें जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है। जरा इसमें लिमिट लगाइए, ये 1/n का मतलब 0 हो गया ना, 1/n 0 हो गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई। और इसको देखिए जरा, ये कितना बच रहा है, इससे देखिए ये बच गया 1/6। इधर देखिए ये 0, 1 - 0 क्या होता है, 1। और इधर देखिए 2 - 0, 1/n मतलब 0 हुआ ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इसलिए, तो 1/n मतलब 0, 2 - 0 मतलब 2 हो गया। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 + 2 + 1/3, ओके। तो ये होगा 6 + 1/3, तो कितना हो गया, 18 + 1/3, यानी कि ये आपका आ गया 19/3, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बस फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है
0 to 4 x plus e raised to power 2x dx. ओके, अब देखिए a is equal to 0, b is equal to 4. ओके, fx is equal to x plus e raised to power 2x and h is equal to b minus a, मतलब 4 minus 0 upon n means 4 upon n. Okay, now limit n tends to infinity b minus a upon n fa means f0, fa is replaced by 0, fa plus h मतलब 0 plus h, f a plus 2h मतलब 0 plus 2h plus f 0 plus n minus 1 into h. Okay, now the question is 4 into limit n tends to infinity 1 by n f0. If you put f0 here, f0, then you will find 0 plus e raised to power 0 means 0 plus e raised to power 0 here, plus 0 plus h means fh. If you put here h, then h plus e raised to power 2h. Okay, here f 2h means 2h plus e raised to power 2 into 2h, this, and here this is write down n minus 1 h plus e raised to power 2 n minus 1 h here. Okay, now 4 limit n tends to infinity 1 by n. आप क्या कीजिए, ये टर्म सेपरेट कर लीजिए, देखिए 0h 2h और जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लीजिए. तो कितना होगा, देखिए h प्लस 2h प्लस 3h प्लस एंड n माइनस 1h, ये आपके ये टर्म सेपरेट हो गए. और इधर देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस e raised to power 2h, 1 मतलब e raised to power 0 means 1. Okay, e raised to power 2 into 2h and e raised to power 2 into n minus 1 into h. Okay, like this. 4 into limit n tends to infinity 1 by n, h common 1 plus 2 plus 3 and n minus 1. Okay, here it's a geometric progression. You can see here it's a geometric progression. Okay, geometric progression का फॉर्मूला है Sn is equal to a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. Okay, a means 1, r क्या होता है भाई, a2 by a1 कॉमन रेशियो. ओके, तो a2 by a1 e raised to power 2h power n means 2n minus 1 upon r e raised to power 2h minus 1. ओके, ये सॉल्व हुआ. अब देखिए 4 into limit n tends to infinity 1 by n, h means here, h means this 4 by n. Okay, h means 4 by n, right here h 4 by n into this is sigma n. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था सिग्मा n क्या होता है, तो ये हो गया n minus 1 into n upon 2. ओके,
और ये सॉल्व होगा तो हो गया ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर 8 बाई एन माइनस 1। ये कैसे हो गया भाई, ये ना ई रेस्ट पावर 2h इंटू एन मीन्स ई रेस्ट पावर 2h 2 इंटू h मीन्स 4 बाई एन इंटू एन, एन सेंस कैंसिल हो गया, ई रेस्ट पावर 8 आ गया, वो मैंने इधर लिखा है। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन इंटू 4 बाई एन इंटू एन कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन अपॉन 2 प्लस इधर 4 इंटू ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई रेस्ट पावर 8 बाई एन माइनस 1। ओके, देखिए एन एन कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल कर दीजिए 2, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 4 इंटू 2 8 हो गया ना। इससे देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 1 बाई एन विल बी 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस 4 इंटू ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर 8 अपॉन एन माइनस 1, फिर आपको करना पड़ेगा 8 बाई एन से हमने डिवाइड किया तो 8 बाई एन से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया अभी अभी आपको समझ में आएगा। 4 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1, अब देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए एक यहाँ पे छोटी सी गलती हो रही, 1 बाई एन का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 बाई एन का मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है ना, तो ये 1 बाई एन, तो देखिए इससे 1 बाई एन इधर है, इधर 8 बाई एन से मल्टीप्लाई तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जो एन है कितना होगा ये ऐसे आ जाएगा 1 बाई 8 यहाँ बचा, और ये जो पार्ट हो गया ये पूरा नीचे वाला ये कितना बन गया 1 बन गया। कैसे बन गया ये मैं आपको बता देता हूँ। एक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की, तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये चल रहा था 8, अभी आ गया 8 प्लस 4 इंटू ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8, ये यहाँ से 8, ठीक है 4 से कैंसिल कर दिया तो होगा 8 प्लस ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, 4 2 जा 8। ओके, अभी आ गया 15 प्लस ई रेस्ट पावर 8 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।